بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا میں مختلف زبانوں کا ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ ہر زبان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، لیکن عربی زبان اہل زبان ہونے کے علاوہ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے ہر مسلمان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ عربی زبان بابائے آدم علیہ السلام کی زبان ہے، یہ جنتیوں کی زبان ہے، یہ سب سے افضل پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے افضل کتاب قرآن مجید کی زبان ہے۔ آج ہم عربی کی اہمیت سے ناآشنا ہے، اس لیے ہم اس کے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں انگریزی سیکھنے کا تو بڑا شوق رہتا ہے، لیکن عربی سیکھنے کا ذکر تک نہیں کرتے۔ آپ خود ذرا غور کریں، ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، مصنون دعائیں یاد کرتے ہیں، لیکن ان سب کے مطلب سے ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، یقیناً صرف پڑھنے کا بھی بڑا فائدہ ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنا سونے پر سہاگا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان سیکھو، کیونکہ اس سے آداب نفسانیہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ دین میں سے ہے۔ بحقیقی تو ناظرین، آپ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنی پوری استطاعت کے مطابق یہ کورس کرانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے اس کورس کا جو طریقہ کار ہوگا وہ شاید دوسرے لوگوں سے تھوڑا مختلف ہو، کیونکہ میں نے جب دوسرے لوگوں کو دیکھا ان کے کورس کا طریقہ کار عجیب سا تھا۔ کچھ لوگ تو صرف گرامر پر توجہ دے رہے ہیں اور تکلم کو سرے سے چھوڑ دیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کورس اس طرح ہوتا ہے کہ وہ صرف تکلم پر زور دے رہے ہیں اور گرامر کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ صرف گرامر پڑھاتے ہیں، قواعد پڑھاتے ہیں، تو ان کے طلباء گرامر تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن اس گرامر کو اپنے کلام کے اندر، اپنے گفتگو کے اندر استعمال کرنا، اس سے وہ طلباء قاصر رہتے ہیں۔ اور جو لوگ صرف تکلم سکھا رہے ہیں یا جو طلباء صرف تکلم سیکھ رہے ہیں، تو ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ تکلم پہ تکلم، بات پہ بات، ہر جگہ باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن ان کی باتیں قواعد کی روح سے غلط ہوتی ہے۔ وہ ماضی کی جگہ مضارع استعمال کرتے ہیں، واحد کی جگہ جمع استعمال کرتے ہیں، جمع کی جگہ واحد استعمال کر رہے ہیں، مذکر مؤنث میں غلطیاں کر رہے ہیں، تو یقیناً ایسے کورس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جو یہ کورس کرا رہے ہیں، عربی لرننگ کورس، اس کے اندر ہم گرامر اور تکلم ایک ساتھ پڑھائیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے کورس میں ہوگی، ہم روزانہ انشاءاللہ تعالی عربی گرامر کے کچھ قواعد بتائیں گے، اور پھر ان قواعد کو یا ان گرامر کو اپنی بات چیت اور حوارات کے اندر استعمال کریں گے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ روزانہ سبق کا ہوم ورک بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو سبق میں سب سے پہلے جو اہم چیز ہوگی وہ عربی گرامر ہوگا، عربی کا کوئی قاعدہ ہوگا۔ آپ کو روزانہ کوئی ایک قاعدہ یا دو تین قاعدے جو مناسب ہوگا یا جو جتنے آسان ہوں گے، اس حساب سے آپ کو کوئی قاعدہ بتایا جائے گا۔ یقیناً اگر ہم پوری تفصیل کے ساتھ قواعد بتانے لگ جائیں اور پورا گرامر آپ کو پڑھانے لگ جائے، جیسے علم صرف ہے، علم النحو ہے، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ ہم ان طوالت کو مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ عربی گرامر، صرف و نحو کی اتنی لمبی لمبی طویل کتابیں ہیں کہ بندہ اسے دیکھ کر ہی ڈر جاتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ ان طوالت کو ہم اختصار کے ساتھ پیش کریں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا قاعدہ بتاؤں گا، ایک فارمولہ بتاؤں گا، ایک رول بتاؤں گا کہ آپ نے اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ بطور مثال، اسم اشارہ ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جس طرح اردو کے اندر نزدیک کے لیے جب ہم کسی چیز کو اشارہ کرتے ہیں، وہ چیز نزدیک ہو تو اس کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں، یہ،
और अगर दूर है तो वो इस्तेमाल करते हैं वो। इसी तरह अरबी कलाम के अंदर भी अगर वो नज़दीक है तो हाजा, अगर दूर है तो ज़ालिका इस्तेमाल होता है। फिर अरबी के अंदर इसमें तफसील होती है, नज़दीक एक है, नज़दीक दो है, नज़दीक ज़्यादा है, दूर एक है, दूर दो है, दूर ज़्यादा है, मुअन्नस है, मुज़क्कर है। तो इंशाअल्लाह ताला ये पूरी तफसील आपको एक सबक में बताया जाएगा। यानी एक कायदा होगा, उस कायदे के साथ जो तफसील होगी वो मुख्तसर तौर पर बताया जाएगा ताकि याद करने में कोई मुश्किल न हो। तो रोजाना का सबक का पहला काम होगा अरबी ग्रामर, कोई कायदा, कोई रूल, और फिर उस रूल को, उस कायदे को अजबर याद करने के लिए सबसे अहम तरीका, सबसे आसान तरीका ये है कि हम रोजाना उस कायदे को हिवारात के अंदर जारी कर दें। हम आपस में इस तरह की बातचीत करें कि एक तो हमारा कायदा पक्का हो जाए, और दूसरा फायदा इसके अंदर ये होगा कि उस हिवार के अंदर हमें नए नए अल्फाज याद हो जाएंगे, हमारी वोकैबुलरी बढ़ेगी। तो हम रोजाना जो कायदा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हम उसके अंदर उस कायदे को हिवार के अंदर इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने किसी सबक में इसमें इशारा के बारे में पढ़ा, तो आगे हम हिवार बनाएंगे तो उस हिवार के अंदर नज़दीक का इशारा, दूर का इशारा, औरत और मर्द का इशारा, मुज़क्कर मुअन्नस का इशारा, एक दो तीन का इशारा, ये सब उसके अंदर सीखेंगे। आप बाजार में गए, आपने दुकानदार से जो कोई चीज मांगी, अब या चीज तो नजदीक पड़ी है या दूर पड़ी है। नजदीक पड़ी है आप उर्दू में बोलते हैं ये चीज कितने की है, और दूर है तो आप कहते हैं वो चीज कितने की है। तो ये अरबी में आप कैसे बोलेंगे कि ये चीज कितने की है, वो चीज कितने की है, ये किस कंपनी की है और वो किस कंपनी की है। तो ये सारी चीजें जब आपको कायदा आ जाएगा तो फिर हम इसके लिए एक हिवार बनाएंगे। ग्राहक और दुकानदार का आपस में बातचीत के हवाले से एक हिवार बनाएंगे, तकल्लुम करेंगे, बातचीत करेंगे, ताकि एक तो हमारा जो कायदा है हमें पक्का याद हो जाए, और दूसरा ये कि हमारी जो वोकैबुलरी है वो भी बढ़ जाए। रोजाना के सबक में तीसरा हमने एक अहम काम रखा है। ये तो उन लोगों के लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं और सच्ची में वो चाहते हैं कि वो अरबी जबान सीख ले। आपको ये होम वर्क इस वीडियो पर अजीब सा लगता होगा कि हम तो वीडियो देख देख के अरबी सीखना चाहते हैं और यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर होम वर्क भी होगा। तो भाई आपसे गुजारिश है कि अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं, आप सच्ची में शौक है, तो फिर आप अभी से अपने लिए होम वर्क के लिए एक कापी अलग कर ले, एक कापी मुख्तस कर ले, क्योंकि मेरा इरादा ये है कि इंशाल्लाह रोजाना हम जो सबक पढ़ेंगे, हर क्लास में जो सबक होगा उस क्लास के आखिर में मैं इंशाल्लाह ताला आपको होम वर्क भी दूंगा। मिसाल के तौर पर जैसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें इशारा, जिस दिन इसमें इशारा का सबक हो गया तो उस दिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने अगली क्लास की वीडियो देखने से पहले क्या काम करना है। आपने अपनी कॉपी के अंदर मिसाल के तौर पर 8 या 10 जुमले इसमें इशारा के लिखने हैं कि ये एक किताब है, हाजा किताबुन और हादिही कुर्रासतुन। तो इस तरीके से आपने 8-10 जुमले जो उस वक़्त से मुनासिब होगा इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा, ये कोर्स का फायदा किसको होगा? तो ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। वो लोग जो सऊदी में या दूसरे अरब ममालिक में जाकर काम करना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इसके अंदर तकल्लुम पर भी जोर होगा कि आप बातचीत कैसे करेंगे। तो चूंकि रोजाना मैं आपको तकल्लुम के बारे में भी इंशाल्लाह बताऊंगा, तो इसलिए ये कोर्स अरब ममालिक में जाने वालों के लिए ये भी बहुत अहम होगा। इस तरीके से वो लोग जो चाहते हैं कि भाई हमें ये समझ में आ जाए हम नमाज में क्या पढ़ते हैं, हम कुरान मजीद में क्या पढ़ते हैं, हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं, हम अल्लाह ताला के साथ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसके लिए उनके लिए भी ये कोर्स अहम होगा। क्योंकि ये कोर्स करने के बाद इंशाल्लाह ताला आप अरबी कलाम को अगर सुनेंगे तो आपको कम से कम उसका मतलब समझ में आ जाएगा, और अगर आप अपना होमवर्क भी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको अरबी किताबों का मुताला करने में कोई मुश्किल नहीं होगी।
तीसरा, ये कोर्स उन लोगों के लिए मुफीद रहेगा जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। जाहिर बात है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की हालत आजकल सबको मालूम है कि वहाँ पर बराए नाम जो है बराए नाम अरबी तो पढ़ाई जाती है, लेकिन उसकी इतनी मेहनत नहीं होती जितनी चाहिए। तो मैंने उनकी किताबों को देखा है, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को बहुत आसान सबक होता है और उन असबाब को याद करना भी तलबा के लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि इस तरह के कवायद जिक्र करूँ और उस पर हिवारात बनाऊँ जो स्टूडेंट्स के लिए भी आसान हो और उनके लिए भी जो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जो किताबें पढ़ते हैं वो समझना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आखिर में आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आप खुद ये कोर्स करना चाहते हैं तो ये तो हमारी सिर्फ तारुफी वीडियो थी। आपको अगर हमारा कोर्स पसंद आया है और हमारा तरीक़ाकार पसंद आया है तो बहुत अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा तरीक़ाकार पसंद नहीं आया या आप जो है हमें मज़ीद कोई अच्छा मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर मुत्तले करें। आपका मशवरा हमारे लिए बहुत अहम है। और इसके साथ एक काम और करना है कि आपके दोस्त अहबाब में अगर कोई अरबी सीखना चाहता है, यकीनन हर किसी की ख्वाहिश होती है सीखना, तो इसलिए आपसे गुजारिश है एक तो उनको इस चैनल का लिंक दे दे और दूसरा काम ये करना है कि उनको इस बात की तरगीब देनी कि भाई अरबी सीखना क्यों ज़रूरी है। इसी के साथ ही आप नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।